जब हम लोग सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो ड्रेसिंग रूम में गया टू चेंज आवर सेल्फ, तो ऊपर से दैट साउंड कम्स, सपोर्टर्स आर देयर जंपिंग, स्टेडियम पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइड, क्रेजी। सपोर्टर्स आवर मेन ऑक्सीजन, विदाउट देम वी आर नथिंग। अभी का जो सिचुएशन है, जो एक इंटरनेशनल एक व्यूअर्स वो क्या करेगा? सपोज इंडिया खेल रहा है, नेशन खेल रहा है, उसमें अगर रोनाल्डो और मेसी का कुछ मैच चल रहा है, Of course, people are going to watch that. 50s में वर्ल्ड कप खेलने का गॉट इन्विटेशन। मेरा बूट में हम लोग खेलते थे, सो वी आर नॉट अलाउड। इस बंगाल मोहन इस बंगाल, ये बंगाल कल्चर में ये है, उस देश इस देश, इमोशनल जगह से ये अभी रेवलिंग में आ गया। How was the dressing room scenario? So went to the field, you have to like kill the players. Okay. I never ever thought that मैं फुटबॉलर बनूंगा। हम लोग का ISL अभी इंडियन लीग हो गया, सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम बना रहा है IFF, they have vision, they have mission, लेकिन something fishy things are going on. Nepotism चल रहा है, favoritism चल रहा है, right person not getting chance in right place. आप माराडोना से मिले हो कभी? Very few seconds I got a chance to meet first time. Then second time when he came, I was so lucky. He was playing with us. He was there. जो सपना देखना चाहता है कि मैं भी एक दिन इस बंगाल में खेल रहा हूँ, मैं भी एक दिन मोहन बगान में खेल रहा हूँ, मैं भी एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, what message would you give to that person? Whatever you have problem, keep doing training. Physically you are not well, keep doing training. Training. Only through training you can develop your skills. In football, India is not even in the top 100. What do you think is the reason for that? Welcome to another episode of Thinking Deep podcast. Today, we are honored to have a very special guest with us, Anit Ghosh, a name that needs no introduction in the Indian football. A former player who played for two of India's most iconic clubs, East Bengal and Mohun Bagan. Anitda has been a key figure in the Indian domestic scene, but has also represented the Indian national team. Known for his leadership, Anitda captained East Bengal to glory, winning the most number of derbies under his captaincy. In this episode, we deep dive into the state of Indian football, discussing why Indian football is lagging behind, what can be done to promote it, and also whether India can produce a future football legend like Sunil Chhetri or Baichung Bhutia. We'll also hear about Anitda's personal experiences, including meeting with the legendary Diego Maradona and his thoughts on the eternal debate, Messi versus Ronaldo. So, let's get into it. Anitda, welcome to our show. We have been dying to do this podcast with you. बहुत दिनों से हम लोग का ये ख्वाहिश था कि आपसे ये पॉडकास्ट करें. So thank you for being here. It is an honor. Same here to me also. Thank you so much. Thank you. To invite me, and I hope आपका जो भी दिल में है, जो भी सवाल है, whatever you have question or queries, मैं सही तरीके से हैंडल कर सकता हूँ. बिल्कुल आप इतना बड़ा चीज़ें हैंडल कर चुके हैं, तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. आई एम श्योर अबाउट. आई होप सो. एब्सोल्युटली बिकॉज आप जो चीज़ हैंडल किए हैं उसके कंपैरिजन में ये चीज़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा चीज़ है. सो बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. या अच्छा Anitda, we'll start with one question. फर्स्ट आई टू से मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका जो स्टूडियो है. It's very good, Thank you. Feel very good, ambience and good vibes. Thank you. Means a lot. Thank you. Thanks a lot. Chalo. I'll start with a very basic question. You might get a bit offended, but still I'm going to ask you that a person who is supposedly a football fan, who is watching games of say Spanish League और EPL, वो क्यों अभी डोमेस्टिक इंडियन फुटबॉल या इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉल वो क्यों फॉलो करेगा? मेरे को उसका रीज़न बताइए. देखो, बात ऐसा है क्वालिटी का, यू अंडरस्टैंड. सो जब डोमेस्टिक पहले क्या था, अगर आप एकदम 50s 60s देन 80s 90s टिल 90s, अगर आप देखोगे वर्ल्ड फुटबॉल का बारे में और इन एशिया सब कॉन्टिनेंटल जो कंट्रीज़ है उनका फुटबॉल का बारे में उतना हम लोग का तजुर्बा नहीं था. कैसा था फुटबॉल, हाउ इट इज़, हाउ दे प्लेइंग, व्हाट दे हैव, व्हाट टू कॉल दैट, फुटबॉल का जो मेथड होता है, जो आपका क्या बोलूँ, आई फॉरगॉट दैट सेंटेंस.
सोचो जो बोलते हैं ना The technical aspect of football you're talking. एवरी कंट्री हैव देयर ओन फुटबॉल घराना होता है. घराना होता है. घराना होता है, बिल्कुल. राइट. हम्म. सो उनको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जब देश भी तरक्की करने लगा, घर में टीवी आया, देन स्लोली जब ESPN वगैरह चैनल आने लगा, तो देन पीपल स्टार्टेड segregate all the differences between Indian football or European football and world football. ये जो क्लासेस जो डिफरेंसेस है इनको समझने का कोशिश कर स्टार्ट किया. अच्छा. सो प्रीवियसली जब इवन 80s स्टार्टिंग और 19th सेंचुरी जो है, उस टाइम तो हम लोग का फुटबॉल बहुत बढ़िया था. गोल्डन एरा. गोल्डन एरा, एब्सोल्युटली. लेकिन उसके बाद जो हुआ ग्रेजुअली इट्स उसको क्या होता है, प्रोमोट इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे जो मैच हम लोग देखते थे टीवी पे और जो दिखाते थे, उसमें एक दो तीन एक पॉइंट होता है जिसमें हाउ टू प्रमोट योर व्हाट टू कॉल दैट प्रोडक्ट. करेक्ट. राइट. सो अगर आप ऐसे सोचो ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको कैसे उसको दुनिया के सामने आना बेचोगे, हाउ टू सेल ऑफ, तो उसमें आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा. पैकेजिंग एग्जैक्टली. सो तो उसको लेके जब started thinking management like IFA and then Indian football में जो management है, and then they are looking for the sponsors. आप कौन सा साल से खेलना चालू किए? मैं प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया 1996 से. एंड 1996 या एंड उसी साल में फर्स्ट ESPN, बिकॉज उस टाइम प्रियन राजवंशी हम लोग का प्रेसिडेंट था IFF का सर ने, एवं उन्होंने फर्स्ट स्पॉन्सर लेकर आया. ESPN फुल कवरेज कर रहा है इंटरनेशनल लीग. At the same time, Amro was, the bank brand of sports goods company. Oh, अच्छा, okay. So Amro sponsors they started first. So एक bigger larger scale में national league start हुआ. पैकेजिंग पूरा बदल गया एकदम. 1996 में आप खेलना चालू किए. और which was your first club? मोहन बागान. अच्छा. Okay. हम लोग टाटा फुटबॉल एकेडमी से आया. अच्छा. वी आर द सेकंड बैच फ्रॉम TFA टाटा फुटबॉल एकेडमी. सो तो उसमें ना स्लोली जब क्वालिटी बढ़ने लगा, एंड देन मीडियाज ऑल्सो, आई मीन व्यूअर्स ऑल्सो, इंडियन व्यूअर्स ऑल्सो ट्राइंग टू to clarify or this segregate or make differences. ये फुटबॉल ऐसा है, उनका घराना ऐसा है, इनका घराना ऐसा है. तो हम लोग का डोमेस्टिक एक चीज़ है परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ा चीज़ है उसमें साइमल्टेनियसली आपका क्रिकेट भी आ रहा था. You see 81 the way cricket boom and got World Cup 83 World Cup 83. and उसके बाद they started playing international cricket. उसमें जीत रहा है भी, मैच भी विन हो रहा है. साइमल्टेनियसली फुटबॉल में इंटरनेशनल मैच जब तक आप उस लेवल पे नहीं रीच कर सकोगे नेशनल लेवल पे, तो आप देखो जितना भी कंट्री है उनका नेशनल टीम ऑलवेज देखो क्या परफॉर्म टॉप रैंक में परफॉर्म करता है. एंड उसको देख के कोई भी कंट्री का इफ यू सी दैट परफॉर्मेंस नेशनल टीम का जो मतलब अच्छा होता है, उसी मुताबिक आपको क्लब लेवल पे भी टीम इज द टॉर्च बेयरर ऑफ द क्लब्स. एग्जैक्टली. सो ये चीज आपको ये जो क्वालिटी है इसको ही मतलब डिफरेंसेस कर दिया. जो है आप सवाल किया अभी का जो सिचुएशंस है, जो एक इंटरनेशनल एक व्यूअर्स वो क्या करेगा, आप क्या सोचते हो? नॉर्मली हम आई हैव ओनली
2 hours. So you want to spend good quality time. तो आप वही क्वालिटी टाइम को कैसे स्पेंड करोगे वो आप सोचोगे बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगा बिल्कुल. सो वहाँ पे अगर आईएसएल आता है क्या डोमेस्टिक कोई टूर्नामेंट आ रहा है कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी हो रहा है सपोज इंडिया खेल रहा है नेशन खेल रहा है उसमें अगर रोनाल्डो और मेसी का कुछ मैच चल रहा है Of course, people are going to watch that. or even world best two club rivalry club like Manu and Liverpool as a playing so उसमें वो होता है क्वालिटी सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन राइट वे अभी जो सिचुएशन है क्वालिटी के ऊपर आपको फोकस करना ही है Absolutely. एज ए प्लेयर एज ए आइकॉन ट्रेनिंग आपको हाउ टू एक्सेल योर पैकेज Correct. एंड एट द सेम टाइम ओवरऑल क्वालिटी Okay. Anitha, let us talk about your footballing career briefly. 1996 में आप मोहन बागान ज्वाइन किए. राइट And how was the rivalry? वो ईस्ट बंगाल मोहन बागान का rivalry उस टाइम में कैसा था? देखो ये तो परंपरा है हाँ. इस जनरेशन आपका दिमाग में कुछ था कि मेरे को इसी क्लब को रिप्रेजेंट करना है या मेरे को इसी क्लब में खेलना है कुछ ऐसा कुछ था आपका जब देखो आई स्टार्टेड गूज़बम्प्स व्हेन ये जो बात जब होता है ना आपस में ईस्ट बंगाल मोहन ईस्ट बंगाल ये एक More of an बंगाली emotion. में बंगाल कल्चर में ये है एक उस देश इस देश people say that East Bengal fans are refugee they are coming from Bangladesh and the customs जो rituals जो था जो एक सिस्टम था वो तो एक इमोशनल जगह से ही ये अभी राइवलरी में आ गया अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखोगे फर्स्ट जो क्लब फाउंड हुआ था आपका एकदम ब्रिटिश टाइम में 50s में Okay. then it's come slowly 1911 I think or something Mohun Bagan was found so मोहन बागान तैयार हुआ फिर 2-3-4 साल का बाद ईस्ट बंगाल आया कैसे आया वो भी एक दो प्लेयर को चांस नहीं मिला सो दे थॉट दैट विल मेक डिफरेंट अलग से एक टीम बनाएंगे अच्छा और उसमें जो मोहन बागान का उस टाइम जो टीम था जैसे होता है ना एक मीथ है 1911 1911 का जो मोहन बागान बेस्ट टीम जो ब्रिटिश के साथ फाइट किया एंड दे विन द आईएफए शील्ड एंड ऑल तो ये जो था उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर वाज फ्रॉम ऊपर बांग्ला मतलब व्हाट इज बांग्लादेश नाउ या सो उससे थोड़ा टीम में उस टाइम जो जो डिस्टर्ब हुआ प्लेयर लोग सही तरीके से किसी को सही टाइम से चांस नहीं मिल रहा है और नहीं जगह दे रहा है तो उसमें दे थॉट दैट ठीक है चलो हम लोग निकल के विल आल्सो मेक वन टीम एंड देन इट स्टार्टेड ईस्ट बंगाल तो ये तो जनरेशन वाइज चल रहा है और ये एक टेस्ट स्ट्रक्चर और फ्लेवर बोलो जो all over India में see if you look right now ISL जब ISL स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 3 एडिशन और 5 एडिशन इट्स लुक वेरी डल क्योंकि उसमें मोहन बागान था उस टाइम 80 के मोहन बागान था लेकिन ईस्ट बंगाल नहीं था सो राइट नाउ लास्ट 4 years बिफोर 4 years जब ईस्ट बंगाल पार्टिसिपेट किया आईएसएल में मे बी टिल इमामी ईस्ट बंगाल नॉट परफॉर्मिंग वेल वॉट एवर बट एक क्रेज आया एक ग्लैमर आया ईस्ट बंगाल आने के बाद क्योंकि ईस्ट बंगाल मोहन बागान इंडियन फुटबॉल इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री यू विल सी इट्स अ लेगेसी एब्सोल्युटली क्योंकि ये चीज़ आपको साउथ कॉन्टिनेंटल जो हम लोग एशिया का जो डर्बी होता है उसमें ईस्ट बंगाल मूवमेंट डर्बी वन ऑफ द बेस्ट एशियन डर्बी नो डाउट
क्योंकि देखिए एज अ फैन और एज एन So- ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू वो फैंस में तो एक टेंशन बना ही रहता है, आज भी बना रहता है, एंड आई एम श्योर आप जब ज्वाइन किए 1996 उस टाइम में भी था। बराबर। पर ड्रेसिंग रूम का सिनेरियो, हाउ वाज द ड्रेसिंग रूम सिनेरियो, वो आप बताइए। It is just like, what to call that. If you get the chance, or if you went to the field, you have to like kill the players. मतलब एकदम Do or die. इंडिया पाकिस्तान टाइप्स एकदम। Yeah, exactly. अच्छा। Do or die, सिस्टम, मतलब सोच में आपको खेलना पड़ेगा। हाँ। तो यही होता था, क्योंकि क्या होता था, ईस्ट बंगाल मोहन बागान उस टाइम वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाते थे इंडिया में। नो डाउट, नो डाउट। And then players differences, like 19.5 or 20. Very, very less differences. And उसमें क्या होता था, एक प्लेयर में भी एक राइवलरी होता था, who's the best player. हाँ। So सब कुछ मिला के वो एक another, India one of the best two teams. करेक्ट। तो उसका जर्सी पहनना, उस क्लब को पार्टिसिपेट करना, उन क्लब से खेलना, एंड कैन यू इमेजिन, अभी तो आई थिंक 3 बिलियन समथिंग हम लोग का जो इंडिया का जो आपका क्या बोलता है पॉपुलेशन and 1.5 billion। यस यस यस। सो ऐसे ही थोड़ा कम था, लेकिन उसमें ओनली 25-30 प्लेयर्स रिप्रेजेंट फॉर दोज क्लब। Can you imagine Correct. how, and everybody, focus on you, how you perform, how you एज अ work. प्लेयर आप लोग जब मैदान में उतरते थे तो हाउ डिड यू डील विथ द प्रेशर, क्योंकि आई एम श्योर द स्टेडियम्स वर पैक्ड, तो Yeah, एकदम it's a huge experience. हाँ, तो Can वो you- चीज कैसे हैंडल करते थे आप लोग? I'll tell you the stories. हाँ। The 1996 में जब हम लोग ज्वाइन किया TFS से, we are 7 players. TFA मतलब? टाटा फुटबॉल एकेडमी। अच्छा, टाटा फुटबॉल। टाटा फुटबॉल एकेडमी से जब हम लोग ज्वाइन किया मोहन बागान में, उसने हम लोग का कोच भी आए थे, अच्छा अच्छा। हाबिब सर, मोहम्मद हाबिब सर ओके ओके। was our एकेडमी कोच। अच्छा। लेकिन उस टाइम मोहन बागान, उस टाइम दोनों क्लब से लड़ाई चल रहे थे, बेस्ट 7 प्लेयर्स कौन क्लब लेंगे। वी गॉट ए लॉट ऑफ ऑफर, दैट टाइम एयर इंडिया फ्रॉम बॉम्बे, सम क्लब ऑफ केरला, पंजाब, जेसिटी, उस टाइम जो टीम था, सम ऑफ देम गॉट ऑफर फ्रॉम गोवा, बट वी प्रेफर्ड बिकॉज उस टाइम प्रियोदा have some mindset to make a one academy, अच्छा अच्छा। because 95-96 we played in South Korea, Junior India, Afro-Asia Cup, some tournament, अच्छा, and we अच्छा। qualified. ओके। Under 19, but under 20 World Cup, the preliminary round we qualified. So the best lot, and 98 World Cup, if you remember, एशिया में हुआ था, कोरिया एंड बहुत छोटा था उस वक्त। बहुत छोटे थे आप। हाँ। तो उसका जो JFA, जापान फुटबॉल फेडरेशन, एंड KFA, कोरिया फुटबॉल फेडरेशन, दे सर्टिफाइड दिस आवर बैच, इंडिया जो अंडर 19 जो बैच है, इनको यू कीप फॉर 4 years and they will be the best among asset for Indian football for Okay. future. तो ये जो था, ये PK सर उस टाइम हम लोग का, मिस्टर प्रदीप कुमार बैनर्जी, आप तो नाम सुने होंगे। सो ही ऑल्सो दैट टाइम टेक्निकल डायरेक्टर था हम लोग का TFA का, टर्फ एकेडमी में उन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर थे, एंड हबीब सर वॉज ए चीफ कोच। तो हम लोग सब एक साथ जब देश को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 जूनियर इंडिया, तो उस टाइम हम लोग खेलने के बाद AIFF को एक सर्टिफाई किया, so this is the product you can keep for 4 years, next 4 years, and they were the best product of Indian future football. Understood? So ये जो एक्सपीरियंस है ना, फर्स्ट डर्बीज, जिंदगी में पहले प्रोफेशनल क्लब में आया एंड खेलने का, वो जो इस मोहन जो डर्बीज होता है,
ये मतलब एक्सपीरियंस ह्यूज, क्योंकि मैं और दिव्येंदु विश्वास वी बोथ अवर इंडियन सीनियर टीम में कैंप में था, इंडिया कैंप में. तो मैच का पहले दिन हम लोग को बाई फ्लाइट वी ज्वाइन विद द टीम. तो उसके बाद जैसे टीम फंक्शनिंग मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो भी होता है, बट यू वोंट बिलीव उस टाइम ESPN फर्स्ट कवरेज कर रहे हैं. ये आपका फर्स्ट डर्बी का बारे में फर्स्ट डर्बी का हाँ, बात कर रहा हाँ, हूँ, okay. एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ. एंड देन तो जब हम लोग सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो ड्रेसिंग रूम में गया टू चेंज आवर सेल्फ, तो ऊपर से दैट साउंड कम्स, सपोर्टर्स आर देयर डांसिंग, देयर जंपिंग, तो उसका वाइब्रेट हो रहा है पूरा नीचे. स्टेडियम एकदम स्टेडियम पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है. हाँ. सो एंड जब हम लोग ग्राउंड में जा रहा हूँ, वो आपका टनल से एंटर कर रहा हूँ, वोंट बिलीव, आप जैसे हम लोग बैठे हैं ना, उस क्लोज में भी एक दूसरे का बात सुनने नहीं दे रहा है. ओनली आई कैन सी कलम, जस्ट ब्लैक हेड एवरीवेयर, एंड दैट crackers, that absolutely electrified, crazy, and you won't believe, now I'm getting goosebumps. So that match in Derby, we won the match, 1 goal. Against East Bengal. Amit Das was our team. He scored that winning goal. Okay. But the match was, I don't know how I'm playing, but very next day morning with the all newspaper, print media, बाबलूदा शुभोदा भट्टाचार्य, वो मेरे लिए बहुत अच्छा आर्टिकल ये क्या होता जो भी है. लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था एकदम क्लोज, मतलब आपका मुंह कान का सामने लेके जाके बात करना पड़ रहा है. इतना सपोर्टर्स लाइक ऑलमोस्ट 1,20,30,000. उस टाइम तो अभी जैसे ISL हो गया, ओनली 65,000 स्पेक्टेटर्स अलाउड. तब तो ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था. देयर इज नो बाउंड्री एट ऑल. कोई भी कैसे भी आ जाओ. So it's like massive, and that how 90 minutes gone, वो डर्बी मैच के पहले रात को नींद आया आपको? नेवर. देखो एक चीज होता है ना, आपको एक चीज बताता हूँ. आई वॉज ड्यूरिंग माई प्लेइंग करियर, आई वॉज वेरी सीरियस काइंड ऑफ पर्सन था. आई नो ओनली दैट माई प्रैक्टिस ग्राउंड, माई क्लब and my house. There's no other recreation. Only 1 hour I used to watch TV. That too EPL. This time, you understand that English Premier League, one of the best team. The 4 teams like Manu, Liverpool, Arsenal, and Man City. Man City तब भी slowly आ रहा है, लेकिन yeah, those the Newcastle. Those are teams are तो वो मैं I was big fan of मैनू टीम का बहुत बड़ा फैन था मैं, स्पेशली रॉय केन, देन सेबेस्टियन वेरन, जैप स्टैम. अच्छा, यू वर तो डिफेंडर. या तो हु वाज योर आइडल? उस टाइम आई वाज वाचिंग वेरी मच एंड्रे कोएमैन का मैच देखते थे. ही वाज नंबर 1 एंड द फर्स्ट टाइम Netherlands started playing formation 1 sweeper. Last man of defense, sweeper. तो ये स्वीपर का काम क्या होता है? स्वीपर का काम होता है सेंट्रल डिफेंस पे रहता है. ऑब्वियसली सेंट्रल डिफेंस में रहता है, लेकिन हिज काम होता है ओनली पीछे से sweeping all this ball, the way we swiping ATM cards. That's the way you have just if you think this is funnel, so the way pendulum or funnel move on like this, every loose ball from opponent team put in the open space, that ball you have to go cover. ये terminology, sweeper terminology I was familiar with because of course you must be knowing Manuel Neuer, he is known as the sweeper keeper. Yes, but defender में sweeper का role पहले गोलकीपर लोग का उतना, अभी जो the way transform modern football,
नॉयर तो एकदम मिडफील्ड तक कभी कभी आ जाता है. अभी जो लास्ट डिफरेंस अभी मैं बोला ना आपको, जो स्वीपर का बात कर रहा था, वो अभी हो गया गोलकीपर. द लास्ट डिफरेंस ऑफ गोलकीपर, जो अभी मैंने इसका नाम लिया, नॉयर का. तो ये चीज पहले था. तो मैं जैसे मेरा पोजीशन एज ए CDM था, डिफेंसिव हाफ खेलते थे, मैं डिफेंडर था बेसिकली. एंड देन आई चेंज बिकॉज ऑफ माई coaches told me that I think my best position is as a CDM, defensive half. अच्छा. Because CDM मतलब सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड. Okay. So उसमें उन लोग मेरे को ऐसे देखा था, because I have a very good control, ball control, I have a very good मैं देख सकता था. my visual डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे थे. I was very good tackler. अच्छा. And also snatcher. तो ये सब फिजिकल खेलते थे बहुत. Yes. Okay. इसलिए I was very injury prone. Because I was physical means मैं ऐसा टैकल कर देता था, मेरे को खुद पता नहीं आता था उस टाइम how I reach that ball. Okay. And sliding because मैं बहुत मालदीनी को फॉलो करते थे. पालो मालदीनी था, जैसे आपको बोला. एंड्रे कोएमन, फिर आपका जैफ स्टैम, मिडफील्ड में सेबेस्टियन वेरन फ्रॉम अर्जेंटीना. फिर तो ये जो प्लेयर लोग फॉरेन में बहुत मैच दिखते थे. अच्छा. तो उसमें उसको फॉलो करते थे एंड कोशिश करते थे उनका जैसे खेलने के लिए. तो वही चीज़ था. एंड वेन एवर आई यूज्ड टू गेटिंग टू द पिच मैं सोचता था that box to box every single जगह में मेरा पैर का टच होना चाहिए. मतलब वो आपका पूरा डिपार्टमेंट है. That is my department. And every single ball I have to win. Every second ball I have to win. अच्छा. So उसके लिए you have to have a quality to vision and your anticipation. Very important. Very, very important. अच्छा अनित दा, आई विल जस्ट गेट इनटू फ्रॉम 1996 आप 1997 में मोहन बागान छोड़ दिए थे. Right. Okay, then you joined Churchill Brothers. Right. I left out मोहन बागान and then. क्यों, क्या रीजन क्या था इसका? रीजन यही था. देखिए my family background, we are coming from very humble and middle class background से मैं आया. Okay. तो उस टाइम क्या था, माई फादर वन ऑफ द ब्रांड कंपनी डनलॉप, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट, उसमें काम करते थे उस कंपनी में. लेकिन हम लोग मैं फैमिली में छोटे थे. मेरा एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर थे. तो थोड़ा बहुत मतलब उस टाइम ऐसा सिचुएशन था फैमिली में. पापा ओवर टाइम करते थे टू सर्वाइव आवर फैमिली. तो स्टिल आई रिमेम्बर जो एक बूट मैं पापा को बोला, मेरा बाबा को, माय फादर, वो होता है ना हम लोग का बंगाली रिचुअल्स कल्चर नववर्षो. तो उसमें उन्होंने हम लोग को मेरे को बोला आपको क्या चाहिए. तो पापा का एक ही चीज़ था, एक टी शर्ट जो सैंडल्स होता है इनर वेस्ट. सो वो खरीदने के लिए. तो मैं बोला मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को एक खेलने का बूट दे दीजिए. अच्छा. तो उस टाइम एक सेकेंड हैंड बूट्स नागराज का था, वो आपका स्टूड होता था आपका, इसको क्या बोलते हैं, लेदर का. अच्छा. हाँ, खिला मार के उसको बनाने पड़ता थे. तो वो चीज़ सेकेंड हैंड मेरा पापा मेरे को खरीद के दिया. दैट टाइम 45 रुपीज़. अच्छा. 45. सो 100 रुपीज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस टू स्पेंड. तो वो पहन के, वो क्या था, वो भी बूट था ना, और दो टाइप का बूट, सीजन का बूट होता थे. अच्छा. एक होता है ड्राई सीजन, आई मीन समर टाइम में, और एक होता है रेनी सीजन का टाइम. डिफरेंस क्या होता है दोनों जूतों में? दोनों में होता है हार्ड, वो पूरा लेदर का बनता है शूज. अच्छा. सोल से वगैरह से लेकर स्पाइक से लेकर एवरीथिंग. दिस फॉर समर बट स्मॉल स्टार्ट होता है. अच्छा. ओके. और जो विंटर्स में जो रेनी सीजन के टाइम में जो होता है, ओके, वो होता है थोड़ा लॉन्ग स्टार्ट. लेकिन मेरे को जो बूट मिला था, पापा ने जो खरीद के दिया था, वो था आपका स्मॉल स्टार्ट. अच्छा. तो जब मैं रेनी सीजन के टाइम पहन के खेलने आते थे तो वो टूट जाते थे. उसका पावर उतना ये नहीं था, सक्षम नहीं था जो उसको पकड़ के रखे.
तो every week I used to go to Muchi Dada to repair it, my boots and all everything. तो उस टाइम से जैसे पापा को भी था, हम लोग 2 भाई थे, तो उनको एक था दोनों भाई कोई भी एक डॉक्टर एक इंजीनियर बने. तो ही वॉज नॉट फाउंड दैट मच व्हाट फुटबॉल कैसे होता है क्या. और एट द सेम टाइम मेरा फैमिली का एक होता है, एक म्यूजिक बैकग्राउंड से हम लोग बचपन से बड़े हुए. म्यूजिक बैकग्राउंड. क्योंकि माई मदर शी वॉज इन क्लासिकल सिंगर थे. अच्छा. एंड घर में एक था रिवाज था, एवरी फ्राइडे वो स्टूडेंट लोग गाना सीखने के लिए आते थे. एंड आई यूज्ड टू प्ले तबला. एंड तो और मैं कलकत्ता आए थे फर्स्ट टाइम, मेरा मम्मी का हाथ पकड़ के तबला का जो ठेका होता है बोलता है उसको, उसके लिए मैं फर्स्ट कलकत्ता में आया थे. अच्छा. You're originally from which place? I'm from district Hooghly. Chuchura. Okay. My birthplace in Chinsura. अच्छा. Okay. So वहाँ से एक मफस्सल का लड़का कलकत्ता में आके, तो फर्स्ट आई रिमेम्बर स्टिल पहला जो मेरा कलकत्ता आने का था वो मेरा मम्मी का उंगली हाथ पकड़ के, मेरा मम्मी का गुरुजी का नाम था रामको चट्टोपाध्याय. अच्छा. एंड एक रिवाज था उस टाइम, बृंद कृष्ण भद्रो, आप नाम सुना होगा. वो महालया द फेमस पूजा, दुर्गा पूजा का हम लोग का फेस्टिव का पहले जो, तो दे ऑल दिस लेजेंड्स उन लोग हम लोग का घर पे आते थे. तो वो देख के मैं बड़ा हुआ. आई नेवर एवर थॉट दैट मैं फुटबॉलर बनूंगा. अच्छा. आपका क्या इच्छा था, लाइक मैं उस टाइम कोई बार्डन नहीं था, ऐसा था मैं सुबह से खेलते थे, खाना खा के निकल जाते थे स्कूल्स. यू वोंट बिलीव, उस टाइम हम लोग का स्कूलिंग ऐसा था, हाफ ईयरली एंड एनुअली. अच्छा. ओके, 2 टाइम एग्जाम्स होते थे. तो हाफ ईयरली का मैं 10 डेज पहले मैं बुक लेके बैठते थे, देखते थे क्या 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 हो रहा है, कैसा स्टडी हो रहा है, कैसा क्वेश्चन वगैरह. हम भी ऐसे टाइप के थे एकदम. एंड दैट्स व्हाई आई एम टफर इन स्टडीज. दिल नहीं करते थे and I was very what to call complaint box type. अच्छा. I love to play football every game. सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस करके आया, कुछ खाना खा लिया, भाग के चला गया. वो हम लोग का बंगाल में होता है ना पॉन्ड जो होता है, उसमें चला गया, उसमें एक थोड़ा वाटर प्लो खेल लिया बॉल का साथ. अच्छा. फिर आया, मम्मी को बोला खाना दे लेंगे, खाना खाने के लिए खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, फिर शाम को चला गया विंटर का टाइम बैडमिंटन खेलने के लिए. Constantly into sports, outdoor. Yes. And जब स्टडी ट्यूशंस टीचर आते थे घर पे, उस टाइम मैं सो रहा हूँ, मैं और मेरा दीदी एक साथ पढ़ते थे एक टीचर के पास. तो मैं क्या करते थे, एक कोई क्वेश्चन दिया, आंसर करके दीदी को देख रहा है, मैं थोड़ा सो लिया, जो टैडनेस होता है. तो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से मैं बड़ा हुआ. एंड आई वॉज सो लकी, जो I went to very early age Tata Football Academy. And ये जो टाटा फुटबॉल अकेडमी जाने का पहले और जो प्लेयर बनने का, जो खेलने का, जो वो जो टेस्ट बोलो क्या, फ्लेवर बोलो क्या, एक ड्रीम्स होता है जो उसको एग्जीक्यूट करना रियलिस्टिक में, ये जो जर्नी था ये पूरा कंप्लीट हुआ ड्यू टू माई मदर एंड माई एल्डर ब्रदर सैक्रिफाइस. विदाउट देम मैं शायद आई डोंट नो मैं क्या बनते थे. लेकिन यस, मेरा फादर तो पूरा पढ़ाई में उनका था एक ही चीज़, यू हैव टू वेरी फर्स्ट, उन्होंने एक ही चीज़ बोलते थे मम्मी एंड माय फादर, यू हैव टू बी गुड इन स्टडीज. नॉट दैट फर्स्ट अब अच्छा आदमी बनो, ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स. एंड वो ऑटोमेटिक आ जाते. एंड दिस थिंग्स आई यूज्ड टू लर्न थ्रू माय फुटबॉल गुरु आल्सो. अच्छा. ओके, जो आप जो भी करो, बट यू हैव टू वेरी थ्रू बाय ह्यूमन नेचर जो होता है, पैशनेट अबाउट, यू हैव टू वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. तभी आप कोई भी जगह में जाओगे तो यू कैन एक्सेल योरसेल्फ. तो ये चीज हमेशा मिलते थे. तो लेकिन मेरा मम्मी बहुत बड़ा एक सिंगर था, जैसे आपको बोला क्लासिकल सिंगर था, लेकिन उन्होंने खुद सेक्रीफाइस किया बिकॉज ऑफ मी. एंड माई दादा ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड गुड फुटबॉल. उनका जो फ्रेंड सर्कल था उस टाइम,
हेमंतो डोरा, ही ऑल्सो एक्स लेजेंड इन इंडियन फुटबॉल, गोलकीपर थे. सौरभ दास थोड़ा सा सीनियर था, वो भी ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, ऑल टॉप क्लब इन इंडिया देश के लिए, वो भी एक्स फुटबॉलर था. वो हम लोग का पारा से था, मतलब जहाँ में चुचुड़ा से. उस टाइम ना तुमको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सप्तोषी. उस टाइम मीन्स जब हम लोग आया उसका पहले 80s का मैं बात कर रहा हूँ, 70s 80s इवन 90s, एंड ऑफ 90s, ईस्ट बंगाल मोहन बागान जो फर्स्ट 11 होते थे वो 99.9% प्लेयर्स होते थे आपका 24th परगना से बिलोंग करते थे. अच्छा. और हुगली से. सो ये जो दोनों आपका पाइपलाइन थे प्लेयर प्रोड्यूस करने का, ये अगर दोनों मैच का डे अगर कोई ट्रेन का कोई दिक्कत हो जाते थे, बंद हो जाते, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, तो क्लब फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम. दे कैन टीम नहीं डाल सकते थे. सो ये उस टाइम बहुत प्लेयर, मोस्ट ऑफ द प्लेयर कमिंग फ्रॉम मोस्ट विलेज साइड, तो यही होते थे. हम लोग ट्रेन पकड़ के वी टू स्ट्रगलिंग. एक था बस पकड़ के क्लब में आओ, अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू वेक अप एंड देन get up early in the morning and catch a train. First train you have to catch, otherwise you cannot reach within the 7:30. 7:30 you have to reach club. Achha. And from 7:45 or 8 o'clock your practice will start. So ये जो चीज़ था, तो फिर आपको वापस आने का था after 3 hours training. Okay. Then you fresh up yourself, you eat from club. Club provide all these foods and everything. So उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ के, फिर बस पकड़ के, तो ये चीज़ था, स्ट्रगलिंग था. तो ये जो जर्नी था, ये विदाउट माय पेरेंट्स इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. एग्जैक्टली. अच्छा अनित दा, फिर लेट अस कम कि आप 96 में मोहन बागान के लिए खेले, 97 में यू जॉइन चर्चिल ब्रदर्स, और फिर 1998 was a very significant year in your life. Yeah. Correct? Because बराबर. you joined Kingfisher East Bengal. तब Kingfisher था? Yes. 98 में नहीं था, 2002 से फर्स्ट club started getting sponsors. Okay. And you played for how long in East Bengal? 6 years. Okay. From 98 to 2004. So 97, as you said, told me that मैं change over किया. I went to Goa because जो मैं बोला था, I want to, मेरा भैया इसलिए बोले थे जी आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है. You understand? So प्रोफेशनल प्लेयर कैसे बनना है ये तो बोला, लेकिन कैसे. So उस टाइम आज का ज़माने के साथ आप अगर कंपेयर करोगे, उस टाइम ऐसा जो अभी जो फैसिलिटीज़ है, जो चीज़ मिल रहा है आँख का सामने, आपका सब कुछ मिल रहा है एक गुड एथलीट बनने के लिए, उस टाइम ऐसा नहीं था. अभी भी नहीं है. स्टिल इंडिया में जो विलेज जो होता है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज जो टैलेंट, रॉ टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर ट्रेनिंग. उन लोगों को करेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है. 1998 में आप ईस्ट बंगाल ज्वाइन किए. राइट. And East Bengal or Mohun Bagan, if we compare, because you played for Mohun Bagan before and you joined East Bengal in 1998. तो ये दोनों clubs में, as because these two are very prominent and popular and people usually have a lot of emotion when you talk about East Bengal or Mohun Bagan. तो ये दोनों club में what are the main differences, key differences क्या क्या थे? Differences पहले तो मैं बोलूँगा वो जो फीलिंग्स, आप बंगाल हो क्या मैं एदेशी हूँ, ये सबसे बड़ा राइवली था. तब उतना फॉरेन प्लेयर्स तो नहीं था, लेकिन अभी का टाइम का कंपैरिजन में नहीं था. Okay. तो उस टाइम आपका फॉरेन प्लेयर बोलने से आपको चिमादा और जमशेद नासिरी और व्हाट टू कॉल दैट one of the famous Iranian players, Majid Bhaskar सर, उन लोग आए थे खेलने के लिए. क्रिस्टोफर भाई था, तो ये लोग उस टाइम चिबुजर था, जो उस टाइम का 80s 70s जो फॉरेनर्स आए थे उस टाइम खेलने के लिए. तो
डिफरेंसेस एक है तो एक ब्लड का डिफरेंसेस है. नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई हाँ वो भी डिफरेंसेस? तो था, लेकिन व्हाट आई फेल्ड, यू नो, आई डोंट नो, मे बी आई प्लेड लॉन्ग टाइम ईस्ट बंगाल, and I was, you know, playing for East Bengal 6 years and 4 years for Mohun Bagan. अच्छा, I started my career with Mohun Bagan. with Mohun Bagan, but most of the career, you know, I spent, you know, with East Bengal. East Bengal. And all this success or achievement, whatever performance, एक प्लेयर का तो परफॉर्मेंस आपका अचीवमेंट नहीं बिल्कुल. होता है, how much trophy or win. Yes, because as we can see, आप उस टाइम में when you joined East Bengal, आप 3 बार नेशनल लीग चैंपियंस जीते थे बैक टू बैक, एंड यू वर वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. और 2002 से 2003 के बीच में यू won 5 trophies as a captain. I think that's a record. Yeah, So still. yeah. So I'm so and lucky. you won most derbies as a captain, did you? Yeah. Let's come back to the differences. आप Yeah. ड्रेसिंग रूम का डिफरेंस बताइए. प्लेइंग विथ बोथ द जर्सीज, आप दोनों जर्सी का डिफरेंसेस क्या क्या है? लाइक देखो व्हाट इज इट लाइक? ये एक ना एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है. अभी का 2025 का जगह में अगर मैं बोलूंगा तो प्लेयर्स नाउ एक्सट्रीम प्रोफेशनल. उसमें कुछ जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आवेग होता है, एक फीलिंग्स होता है अंदर से. दैट फीलिंग्स अभी का प्लेयर लुक्स में नहीं है. दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, लेकिन हम लोग का टाइम में था. दैट्स व्हाई, यू नो, जो ईस्ट बंगाल में खेलते थे और मोहनबागान में खेलते थे, दे आर प्लेइंग ईयर एंड आफ्टर ईयर्स. कोई प्लेयर को देखोगे 15 साल, 10 साल, 8 साल, 8 years, 10 years, 15 years, one club they are playing continuously there, continuing there. So ये चीज था. एक क्या होता है, एक तो पैशन एंड साथ उसके साथ वो जो आपको मैं बोला, जो फीलिंग्स, ब्लड फीलिंग्स. और एक चीज होता है ऑफ कोर्स जो आप बोले, एक होता है आपका क्या बोलूं, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लब. जैसे एक कलर का भी मैं बोलता, मैं मोहनबागान से भी खेला, आई नेवर एवर सेड दैट, बट देखो इट्स माय पर्सनल फीलिंग्स. जब मैं जो जार्सी का जो कलर होता है ना, इट्स आई थिंक लिटिल बिट, यू नो, डिफरेंस देता है. ये तो मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है. डिफरेंसेस एज इन क्या टाइप का डिफरेंस बोल रहे हो? टीम का जैसे मैनेजमेंट सोच लो. मैं देखा दोनों क्लब का मैनेजमेंट, जब डर्बी होता है ना, बिफोर डर्बी 2.5 weeks before, East Bengal, say so-called East Bengal club switch off, छोटा से बड़ा, you know, मतलब top level official, everyone, supporters, सब, you know, coming to the club, motivated players, you know, individually they hold, they catch and say that we have to win, we have to play like, you know, there are a lot of, you know, psychological boost up and everything. I won't say that East Bengal मोहनबागान में नहीं था, वहाँ पे भी था, but somewhere other एक जो एग्रेशन, जो एग्रेसिवनेस उस टाइम में जो था, इवन सपोर्टर्स में, you know, supporters our main, what to call, for me it's oxygen. Of course. Without them we are nothing. A club is nothing. Absolutely. Players are nothing. So they can recognize you. You are Saptashi, I am Anit Ghosh, somebody XYZ. They given a recognition. So वो एक differences बहुत है. अभी शायद अभी का जनरेशन बोलेगा नो, इट्स मे बी एक यू नो डिबेट में चला जाएगा. लेकिन ये था, है, और ये चलते रहेगा. और ये चलते रहेगा क्योंकि ये फ्लेवर टेक्सचर नहीं रहेगा तो जो देखो, इफ यू सी स्पेन फुटबॉल, स्पेनिश फुटबॉल, they also have, you know, Barcelona and Real Madrid. If you see in, you know, EPL, like, you know, English football Premier League, there also you can see, you know, Man U versus Liverpool, Man U versus Man City right now, or Arsenal.
नहीं वो तो चलता ही रहता है ये चलता क्योंकि है हर जर्मनी में फुस्सी बायर्न म्यूनिख वर्सेस आपका आपका क्या बोलते बोरुसिया हैं डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड। सो ये जो चलते रहता है ये चलते रहेगा। ये है आपका क्या बोलूंगा, ये फीलिंग्स है। यू कैन नॉट, आप जितना भी बोलो। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, आई विल टॉक अ बिट अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में तब कौन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इफ यू टॉक अबाउट, इस साइड में वी हैड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, इंजमाम उल-हक थे, यूनिस खान, एंड इस साइड में यू हैड सचिन, सौरव एंड द्रविड एंड वेरी क्लास प्लेयर्स। बाद में वी थॉट दैट ये लोग जब रिटायर कर जाएंगे राइवलरी ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। देन केम द विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा एरा, उन लोगों का भी बाबर आजम, बहुत lot of players. Good players. And in football also, if you talk about international football, Barcelona, Real Madrid में जब मेसी रोनाल्डो they left the club, we thought that the rivalry will be gone, but अभी भी वैसा ही है rivalry. Right. Likewise, East Bengal Mohun Bagan, अभी भी the rivalry is still there. True. Correct. अच्छा अनिता, ये ईस्ट बंगाल मोहन बागान बहुत हो गया। नाउ आई विल गिव यू अ डेटा जो आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकता है, ठीक है? देखिए, इन क्रिकेट इंडिया इज अ ग्लोबल पावर हाउस कंसिस्टेंटली, या तो टेस्ट में 1, ODI में 2, T20 वी आर इन द टॉप 1, 2, 3, ऐसा चलता रहता है। इफ वी टॉक अबाउट हॉकी, देन इंडियन हॉकी इज करेंटली इन द 5th. If we talk about chess, as you know, Gukesh, he is the youngest grandmaster. Yeah. If we talk about badminton also, we have PV Sindhu, Lakshya Sen, who has been in the top 10, top 12. फिर हम लोग आते हैं फुटबॉल में। In football, India is not even in the top 100. What do you think is the reason for that? देखो, ये जो सवाल आपने किया, which question you are doing with me, asking me, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग का थोड़ा सा अलग करके एवरी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने का पहले ये क्वेश्चन हम लोग को फेस करना पड़ता है। वेरी सेंसिटिव क्वेश्चंस, कब खेलेंगे। हाँ, तो देखो, मैं क्या सोचता हूँ, दिस इज माई एक्चुअली पर्सनल व्यू, observations. Okay. If you go through, cricket, 1983, जब वर्ल्ड कप चैंपियन हुआ, कपिल देव कैप्टन थे, that is the year is boom cricket, right? And then gradually they developed, they started playing, friendly matches, जैसे टेस्ट वगैरह, वनडे वगैरह, जैसे होते थे 50 overs and टेस्ट 5 days का। उसमें उस टाइम कंट्री ज़्यादा नहीं था, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और टू सम एक्सटेंट आपका जिम्बाब्वे और श्रीलंका, पाकिस्तान भी था, सॉरी पाकिस्तान, राइट। सो दिस 6 कंट्री नेशन आर प्लेइंग अमंग देम। लेकिन क्या था उस टाइम, जैसे एक वर्ल्ड कप, कैन यू इमेजिन? सो वो होने के बाद जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो और आप जाते रहते हो, तो उसमें क्या होता है ना, यही डिफरेंसेस है हम लोग का फुटबॉल का साथ क्रिकेट। स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं हम लोग? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रगल हर जगह से हो रहा है। आई एम टेलिंग यू 2-3 पॉइंट्स। एक तो हो गया ये इंटरनेशनल मैच, एज लॉन्ग वी आर नॉट प्लेइंग मच मोर इंटरनेशनल exposure, not getting exposure, or matches we are not playing, I don't think so ये चीज़ हम लोग रिकवर कर सकता है। और जो लैक है, जो मिसिंग है आप बोल रहे हो, वो डिफरेंसेस हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। और साथ में है एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो, जब क्रिकेट एकदम स्टार्टिंग में, इफ़ यू सी, इफ यू गो थ्रू Indian cricket, BCCI, how they reform. वो लोग भी ग्रास रूट लेवल से ही कर रहे हैं। क्या था ना, उन लोग का भी एक ड्रीम था, एक अप्रोच में था। कौन लोग था उसमें? वही इंडियन बेस्ट बिजनेसमैन एंड द पॉलिटिशियंस। माधवराव सिंधिया, अपना जगमोहन डालमिया हो गया, द बिजनेसमैन कलकत्ता से। फिर आपका हो गया महाराष्ट्रियन, दैट लेजेंड पॉलिटिशियन, आई फॉरगॉट हिज नेम। सो
ऐसे 4-5 इंडिया टॉप क्लास बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन, दे Change the scenario. सेंट्रली दे थॉट दैट, एंड यही चीज प्रियोदा भी कोशिश किए थे. आई वोंट से दैट नो ही इज नॉट ट्राइंग, ही ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट नॉट दैट वे, नॉट दैट वे. क्योंकि कोई तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. इफ यू गो थ्रू दैट इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री, हम लोग 50s में वर्ल्ड कप खेलने का वी गॉट ए इन्विटेशन, बट उस टाइम बेयर बूट में हम लोग खेलते थे. सो वी आर फीफा इज नॉट अलाउड. फिर वी गॉट जब बूट से स्टार्ट किया, फिर हम लोग ओलंपिक्स 4th पोजीशन में आए. फिर एशियन गेम्स में बैक टू बैक 2 टाइम्स गोल्ड मेडल, जो हम बोलते हैं 60s 70s जो गोल्डन एरा जब मैं बात कर रहा हूँ, उसके उस टाइम में तो क्रिकेट होते थे. करेक्ट. लेकिन ऐसा नहीं. 83 में इंटरनेशन एकदम बूम कर गया क्रिकेट, बूम कर गया ऑल ऑफ अ सडन. एंड दे स्टार्टेड स्लोली मैनेजमेंट, आई मीन पॉलिटिशियंस, और हाउ टू, बिकॉज ये जो आपका आईपीएल होता है ना, आई हार्ड दैट ये जो ललित मोदी था, जिन्होंने इसका जो मास्टर माइंड प्लान था, इनने पहले मैं सुना था ऐसा कहीं से, जो ये ही फर्स्ट ऑफर्ड प्रियोदा उस टाइम. अच्छा, प्रियंदर मुंशी को एफएफ में, जो फुटबॉल को आप कोशिश कीजिए, माने फुटबॉल को प्रमोट करने का. यस, ओके. दैट प्रोजेक्ट, दैट प्लान, एवरीथिंग, मास्टर प्लान, एवरीथिंग. बट समहाउ सैंड ने उनको क्योंकि accept कहीं नहीं ना किया. कहीं तो एज अ ऑडियंस या एज अ फैन, फ्रस्ट्रेटेड फैन ही आप बोल सकते हो. नहीं, वही कहीं तो वही तो हाँ, होगा. correct. सुदीप, तो देखो, कोई भी शब्द से सॉरी, कोई भी कोई से अगर देखोगे, परफॉर्मेंस ऑलवेज आपको प्रमोट करता है, आपको रिकॉग्निशन देता है. एंड एट द सेम टाइम विनिंग, आप डोमेस्टिक खेलो और इंटरनेशनल खेलो, स्पेशली जो भी स्पोर्ट्स होगा उसमें, इफ एग्जांपल लाइक आप देखो यूएसए में, अमेरिका में बेसबॉल, हाउ मेनी क्लब्स प्लेइंग? मोर देन 15 क्लब्स. सो ये चीज को आपको द वे यू हैव टू ब्रांडिंग करना पड़ेगा, आपको प्रमोट करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट हो रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन वेरी स्मॉल वे. एंड ये जो आ रहा है ना, साइमल्टेनियसली जो एशिया का जो अलग दूसरा जो क्लब कंट्री है, द वे यू टुक द नेम, they are जापान, कोरिया. क्योंकि 1980s में इफ वी लुक एट जो कंट्रीज आपने अभी बोले, जापान, कोरिया, दे वर नोवेयर. एकदम उन लोगों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था. बट अभी तो ऑस्ट्रेलिया भी एशिया में ज्वाइन कर लिया. अभी देखिए आप, दे आर कंसिस्टेंटली प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप. तो कहीं ना कहीं तो लैग हो रहा है. दे आर डेवलपिंग सच ए लेवल, यू कांट कंपेरिजन विद देम, बिकॉज मेरे को वही लगता है. एक तो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स इंडिया में. क्या कैसे? लाइक प्रॉब्लम्स इन द सेंस, आई वोंट से दैट प्रॉब्लम, इट्स जस्ट लाइक आवर इंटरनेशन, इतना रीजन, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडियन से लेके एवरीवेयर वी हैव टैलेंट. और एक चीज अच्छा है, आपको शॉट भी मिलेगा, फिजिकल गुड हाइट ऑल्सो मिलेगा. इफ यू ऑब्जर्व नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स, टॉल बिल्ट होते हैं. हाउ यू सेग्रीगेट, आई मीन कैसे आपको डिफरेंसेस करोगे? आप एक साउथ इंडियन प्लेयर, एक टिपिकल बंगाली प्लेयर्स, साथ में उसको नॉर्थ इंडियन प्लेयर दे दो, आप क्या देखोगे उसमें देखोगे एक चीज होता है, जो साउथ इंडियन प्लेयर्स उसका हाइट होता है, बट बंगाली प्लेयर्स आप अगर यहाँ से देखो, उन लोग का मेरिट फुटबॉल होता है. अच्छा. बट इफ यू गो थ्रू द नॉर्थ इंडियन साइड, यू विल गेट गुड हाइट, गुड बॉडी बिल्ड, फिजिक्स, बट जो मेरिट फुटबॉल होता है वो नहीं होता है. दे हैव वेरी गुड स्पीड, एजिलिटी, like North Indian, like तो hypothetically I'll ask you one question. Hypothetically अगर आपको एक like टीम बनाना होगा, नॉर्थ इंडियन, बंगाली, साउथ इंडियन, आप एक नॉर्थ इंडियन को और एक बंगाली को और एक साउथ इंडियन को कौन सा पोजीशन में प्लेस करना चाहोगे? देखो, ऑब्वियसली
अभी जो इंटरनेशनल Very hypothetical question, या आई एम टेलिंग यू, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट आपको पहले देखना है, ऑब्जर्व करना है जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जो डिफरेंसेस हो रहा है, एक होता है फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी, and then the way they're playing the speed football, physicality, and at the same time that level of modern training, equipment, sports science, total everything. उस जगह से आपको देखना पड़ेगा, एक टीम आप जब करोगे तो you need a up front and the back front, defense and the attacking side. You need to have a good build and as well as good height. अच्छा. And at the same time skills. Skills very very important. देखो ये सब चीज़ हम लोग को मिल रहा है. अभी तो फॉर्मेट भी चेंज हो गया, यूरोपियन कोचेस आ रहा है आफ्टर ISL स्टार्ट होने से बाद. बहुत कोचेस का अपना एक सेटअप बना रहे, एक फॉर्मेट के गेम खेल रहे. उस फॉर्मेट का जरिए उसके लिए वो लोग उस पोजीशन के लिए जो फॉर्मेशन में जो पैटर्न में वो लोग खेल रहे, उस पैटर्न से प्लेयर रिक्रूट हो रहे. करेक्ट. Right? So it transforms like transformation is coming like anything. हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था डेफिनेटली था. अच्छा. बेसिक तो सेम होता है. करेक्ट. You cannot change basic. Isn't it? तो उस जगह से आपको अगर सोचना है, लेकिन क्या होता है ग्रासरूट में जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए वही सबसे बड़ा चीज है, जो फैसिलिटीज होना चाहिए. If you why Europe in top level, एकदम बचपन से उन लोगों का ग्रूमिंग वैसा रहता है. Why Japan, Korea, even Iran, Iraq, Saudi, Kuwait, Qatar, those country, central Asia, और ऊपर से आपका अभी ऑस्ट्रेलिया भी आ गया. तो why they are developing? Because they are grassroots. यहाँ पे आप देखो अब ISL आने के बाद मनी तो एवरीबॉडी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ करेक्ट मनी. लेकिन जब ISL आए थे उसमें एवरी फ्रेंचाइजी को क्या बोले थे FSDL, एवरी फ्रेंचाइजी हैव इंडिविजुअल मस्ट कंपल्सरी ग्रासरूट आपका जो टीम रहेगा ग्रासरूट का एक आपका एकेडमी रहना मांगता है. अच्छा. एंड उसके लिए जो अमाउंट ऑफ फिगर दे आर गिवन एवरी फ्रेंचाइजी, उसमें 30% यू हैव टू स्पेंड फॉर ग्रासरूट. अच्छा. सपोज आपको 4 करोड़ आपको दिया, उसमें 30%, डोंट यू थिंक इट्स लॉट ऑफ मनी हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और भी होना चाहिए. बहुत धीरे हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल साइड में भी प्रॉब्लम्स है. ओके. जैसे आप सोचो इंटर में माने आप गांव में गया, विलेज में, वहाँ पे जो चीज़ नहीं मिल रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस से सिचुएशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे लोग, जो रॉ टैलेंट है उसको जो कोचेस लोग करा रहे हैं. जैसे जब मैं TFA में गया, बिफोर TFA व्हाट आई एम गेटिंग नथिंग. आई नेवर नो व्हाट इज कॉल्ड जिम, व्हाट इज कॉल्ड वेट ट्रेनिंग. उस टाइम कोचेस लोग ऐसा ट्रेनिंग हम कभी सोच नहीं सकते. आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. व्हाई आई एम सो इंजरी प्रोन, एंड आफ्टर इंजरी ऑल्सो आई एम सो कंफ्यूज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. Because coaches and doctors saying that you need to operate, coaches saying no, through therapies हो जाएगा. नी इंजुरीज का एक होता है मेनिस्कस, मीडियल कोलैटरल मेनिस्कस, और एक ACL. दोनों इंजुरी डिफरेंट है. You understand? You had ACL tear, no? Yes. Okay. After injury only, after I faced lot of problem, then only I educated myself. So जो मैं कंपेयर बोल रहा हूँ आपको, एक मेनिस्कस आपको 21 days लगता है after operate, coming to the next, smoothly can come in the field. But एक ACL, you need to, according to your volume, according to your age, your recovery will, जो होता है स्पोर्ट्स साइंस, करेक्ट, उसमें आपको टाइम लगेगा. लेकिन ये चीज अगर आप एडुकेटेड नहीं होगा, कोचेस कान
realize the differences between meniscus injury and ACL injury, तो प्लेयर तो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज हो जाएगा. कंफ्यूज हो जाएगा. एंड वही हुआ था उस टाइम मेरा साथ. दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू. ये सब चीज उस टाइम हम लोग बहुत फेस किया प्रॉब्लम्स, जो अभी स्लोली आफ्टर एपीए हम लोग प्लेयर एसोसिएशन बनाया. पहले तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता था वर्बली, यू नो दैट. अच्छा, या मतलब नो साइनिंग, नथिंग. साइनिंग होते थे क्लब में साइन, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वर्बली होता था, जो पेमेंट होता था वाउचर में होते थे. मतलब एकदम कच्चा टाइप का. एकदम कच्चा टाइप, ओके. normal piece of paper. And that's the reason, very easy to player को proper payment नहीं मिलते थे. There was a big, conspiracy or, एक gap होते थे, misunderstanding, miscommitment. You understand? आज के डेट में डू यू थिंक दैट ISL ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गया? डू यू थिंक ISL के वजह से इट्स डूइंग मोर काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स देन गुड, और व्हाट इज़ योर टेक ऑन ISL? क्योंकि हमेशा से इफ़ वी सी इंडिया का, दे हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग एजिंग फॉरेन प्लेयर्स. ठीक है, कोई भी प्लेयर हो, इफ़ अ पर्सन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड अ टॉप क्लब इन यूरोप से, अगर उसको आप ला रहे हो एट द एज ऑफ 35, तो एट 35 यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ही विल परफॉर्म एट अ वेरी टॉप लेवल. तो व्हाट इज़ द पॉइंट, आप बताइए. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ISL आया, FSGL एंड रिलायंस, नीता अंबानी इनका जो ड्रीम्स था, ये प्रोजेक्ट, ये मॉड्यूल जो था, ये मॉड्यूल यही था टू प्रमोट इनिशियली एक टूर्नामेंट टाइप and bring all the marquee players, and that marquee players should be represent all these franchises. They're the main face. And at the same time, एक ऐसा था, अगर आप ये ISL का भी देखो, फर्स्ट 3 एडिशन और 5 एडिशन में, उसमें there was a big controversies going on between AIFF and FSGL. जो ये ऑफिशियल लीग होगा क्या अनऑफिशियल लीग होगा, अनऑफिशियल टूर्नामेंट और अनऑफिशियल और ऑफिशियल, ये लेके एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था. एंड वेरी रिसेंट आई थिंक AIFF गिवन दैट ऑफिशियल लीग बोल के, उसको टूर्नामेंट बोल के जो टैग मार्क किया, ये पहले नहीं था. तो ये करने से डेफिनेटली आई सेड यस, गेम चेंज हुआ, प्लेयर्स सब कुछ एक तो चेंज हुआ डेफिनेटली. इट हैज गॉट द ग्लैमर, एक ग्लैमर भी आया, डेफिनेटली. प्लेयर का क्या बोलता हूँ मैं, डेवलपमेंट हुआ बहुत कुछ, उनका नेचर, उनका अपने आप को ग्रूमिंग करने का, एक फॉरेन प्लेयर के साथ हो सकता है ओवर एज, बट एक्सपोजर मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग. एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड आपको देखना भी तो है ना, जो प्लेयर सही में डेवलप मतलब हो रहा है कि अपना देश के लिए डोमेस्टिक प्लेयर डेवलप कर रहे हैं क्या नहीं. देखिए, हम लोग का टाइम में क्या था, हम लोग का टाइम में भी फॉरेन प्लेयर आते थे, राइट, लॉट ऑफ ब्लैक्स अफ्रीकन प्लेयर्स आर कमिंग दोज डेज. तो हम लोग खेलते थे, तो पहले एक जो होता था फिजिकलिटी में हम लोग को डर रहता था, वी गॉट सो स्केयर्ड, कैसे उनको रखेंगे, इज अ बिग वेरी स्ट्रांग बिल्ड बॉडी एंड दिस एंड दैट. लेकिन जैसे आप वंस ट्वाइस थाइस आप खेलते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक डर होता है अंदर में, वो चला जाता है. बट एक्चुअली इज इट ट्रू? ये डर लेकिन आपका मेंटली भी होता है, फिजिकली भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है. करेक्ट. सो वो चले जाने से क्या होता है, एक फ्री. And then, apart from football, off the field and on the field, both एक मार्की प्लेयर का जो होता है, how he spend time after football, कैसे होता है, what is the discipline, how they maintain. So ये चीज डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर में डेवलप किया, इम्प्रूवमेंट किया. लेकिन जो बात है, जो प्लेयर्स फैसिलिटीज ज़्यादा देना है आपको ग्रास रूट में. यू हैव टू. अदरवाइज
आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पहले तो हम लोग को रैंक करना है वर्ल्ड कप का पहले एशिया में आपको बेस्ट 10 में आना है, बेस्ट 12 में आना है. So do you see जो कोशिश था दो लास्ट आई थिंक 21 और 23 में हम लोग को चांसेस मिलते एशिया कप खेलने के लिए आफ्टर 2015 के बाद आई थिंक 2019 उसके बाद तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सका लास्ट इगोर स्टीमा का टाइम लास्ट जो कोच चेंज हुआ नेशनल टीम का. सो ये हमको पहले क्वालिफाई करना है, तब विल थॉट अबाउट और थिंक World Cup? वर्ल्ड कप. So can you, in the next how many years can you see India qualifying for a World Cup? Hypothetically. Very tough question. Acha. See, I am very optimistic. Saptoshi, I am very optimistic. Can be possible. Okay. Can be possible. Now you can ask me why, how, which way. ये भी बोलना मुश्किल है. ना possibility है. You have to come all together. सबको. Now you telling me, if you asking me, सबको सबको मतलब- means yes. हाँ. सबको मतलब see, देखो कोई भी कंट्री में तुम देखो, जो भी स्पोर्ट्स नंबर 1 है उसका तो फुल सपोर्ट गवर्नमेंट करता है, राइट? विच हैपेंड इन इंडिया थ्रू क्रिकेट, अपैरेंटली फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स. देखो ये तो हम लोग का देश तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसमें मुस्लिम्स है, बंगालीज है, वी हैव लॉट ऑफ, हर कोई है. the way you said that चेस में, बैडमिंटन में, कबड्डी में, हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, अभी तो जैवलिन थ्रो में वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 नीरज चोपड़ा. सो टेनिस, लॉन्ग टेनिस में इस उम्र पे लिएंडर पेज, आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम. सो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सप्तोषी, प्लीज, ये दिस द राइट टाइम. आई थिंक जो पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट सेंट्रली आपको सही तरीके से प्रमोट करना है. यू हैव टू रिसर्च एंड प्रॉपरली. आई वोंट से दैट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन जिस तरह कहीं से भी तो लैकिंग हो रहा है. दैट्स द रीजन. सो वो रूट पैसा तो कैसे भी करके मिल रहा है, आ रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है. अपना रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है डेफिनेटली. लेकिन टू प्रोमोट एज ए ग्लोबलाइज वे पे उसको करने के लिए आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड वेरी मच to hold each other hands, catch each other shoulder, and fans का क्या रोल हो सकता है? Do you think fans can also play a part in of this? course. They So are as definitely- fans, what can we do कि इंडियन फुटबॉल वो लेवल पे पहुंचे? That is more important as a general audience, क्योंकि we are not normal लोग तो politicians या businessmen नहीं होते, normal लोग बस fans होते हैं. So what can we as fans do ताकि फुटबॉल को हम वो लेवल पे, इंडियन फुटबॉल को हम वो लेवल पे एक दिन देख सके? Maybe 10 years down the line, maybe 20 years down the line. That is the time frame. It's very difficult to say, but as fans, what can we do? see, we have to wait. Because sir, Certain- it really pains me. मेरे को दुख होता है because if I see a Sunil Chhetri from my country, मेरे को भी दुख होता है. हाँ, Do he you is think that not. I am not feeling bad? मैं भी तो सोचता हूँ. I also played pre-World Cup qualifying matches in 1996 Doha, Qatar में. We lost 6-0 against Qatar. So as a ex-player, I also represent nation. तो मेरे को दुख नहीं लगता है. I also felt very bad, very sad.
I'm also thinking how to develop, which way, what is the process. क्योंकि एक if we प्रोसेस say तो डेफिनेटली है सप्तषि, प्रोसेस है, लेकिन समय अदर कहीं भी आई वोंट से दैट, आई नेवर एवर सेड दैट आवर स्टेट गवर्नमेंट और आवर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्पेंडिंग मनी टू प्रमोट स्पोर्ट्स, बहुत कर रहा है, नहीं तो कैसे हो सकता, ओलंपिक में देखो रिजल्ट देखो, करेक्ट अभी तुम एशिया कप और वर्ल्ड कप में हॉकी का परफॉर्मेंस देखो, एवरी सेक्टर, लेकिन कहीं जगह पे जो हम लोग जो बना हुआ है उसको प्रमोट कर रहे हैं, गॉट माय पॉइंट. Do you think cricket is taking away the glamour? Cricket is taking the maximum share of the attention, the budget. No. I won't say fully that. Okay. No, I'm not. To some extent. Okay. To some extent. Because only the reason they are, winning or getting champion, World Cup. देखो, cricket भी transformation हो गया अभी. पहले 19th century क्या था? Test था and one day था. 50 was one day and 5 days of test. फिर वो आ गया 2020. फिर आ गया ये जो फॉर्मेट, इसमें भी इंडिया, तो वही होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है बॉस. करेक्ट. और जो दिखता है बिकता है उसको तो बना रहा है. सी आफ्टर IPL promoting how many quality players, एक पाइपलाइन हो गया. सो हम लोग का ISL जो है ये अभी इंडियन लीग हो गया, नंबर 1 लीग, लेकिन उसका साथ साथ जो पाइपलाइन होना चाहिए, एक टूर्नामेंट होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए. सिस्टम बना रहा है IFF. दे हैव विजन, दे हैव मिशन. इट्स नॉट दैट लेकिन वेयर दैट गोज दैट मनी, वेयर दैट प्रॉपर जगह में प्रॉपर चीज नहीं हो रहा है. समथिंग गोज रॉन्ग. Something goes wrong. Definitely something goes wrong. Something fishy things are going on. तभी ये चीज हो रहा है. A lot not coming. Bunch of players are not coming. This year, if we talk about our Bengal, this year after a long time, we championed Santosh Trophy. How? Because the selection, the process, the system, 1.5 years back. All India Football Federation, AIFF, sorry, not AIFF, extremely sorry, Indian Football Association, IFA, the governing body of Bengal football, and sports minister, government, with the one government and then IFA, Indian Football Association, both, they sitting one place and then club. ये तो नहीं होगा. उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें भी लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक प्रोसेस है. अभी नेशनल टीम को कौन देते हैं? AIFF है. दे बोल रहे हैं प्रोजेक्ट है, विजन है, मिशन है, बट उसको एग्जीक्यूट करना प्रॉपर वे जो यूरोप में है. आप एक स्काउटर हो, सपोज आप लियोनेल मेसी जब छोटे थे तो उनका तो फिजिकल एक डिस्क्रिपेंसी था, डिसऑर्डर था. वी नो ऑल ऑफ अस, वी ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल. तो उसमें उनको उनका पेरेंट्स किया था, व्हेन दे कम टू नो और एवर विद दैट इज डिसऑर्डर, उन्होंने लोग क्या किया, दे बोथ ऑफ देम पेरेंट्स टेकन द डिसीजन दैट पुट हिम इन ऑन द बेस्ट एकेडमी, ला मासिया. तो जो स्काउट किया, जो ऑब्जर्व किया, जो पहला जो कोच था, उनका विजन आप सोचिए, उनका विजन क्या है? उनका विजन यही है. वहाँ का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट यू हैव टू नो प्रोसेस क्या है. जो भी आज देखो माराडोना हुआ, जो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, जो भी प्लेयर, वहाँ पे यूरोप में एक प्रोसेस है. जो फर्स्ट जो स्काउटर है, जो स्काउट करता है, ये बच्चा एज ऑफ 5 और एज ऑफ 6 ही गोइंग टू बी इन फ्यूचर फर्दर प्रोफेशनल प्लेयर. उसका पूरा डेटा फ्रॉम ब्लड से लेके, फैमिली बैकग्राउंड से लेके, एवरीथिंग ही हैज, सॉरी, यू अंडरस्टैंड. एंड उसको फिर चेंज होते रहता है. एंड ऑल ऑफ देम आर गेटिंग सैलरी. एक चेंज सिस्टम में, एक रोलिंग सिस्टम है वहां पे. सपोज मैं मेसी को
स्पॉट किया, Okay. राइट, आई वांट टू सेल ऑफ. आपको सेल करने के बाद मेरा ड्यूटी खत्म नहीं हो रहा है. Hmm. सो यू रिकॉग्नाइज मी. Hmm. आप मेसी को बनाने के बाद आफ्टर मेसी बिकम मेसी, आप दूसरी जगह में जहाँ पर सेल करो और परचेस करो कुछ भी, ये जो है प्रोडक्ट तो आपका भी वहाँ पे एक आपको भी मिल रहा है. सो इट इज चेन वाइज विच इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया. आपको पता है इस साल बंगाल का जो संतोष ट्रॉफी की टीम था उसमें आदित्य थापा बोल के एक प्लेयर खेला. अच्छा. आपको मैं बता रहा हूँ. आदित्य थापा वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. Okay. फिजिकल एजुकेशन कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया. बीपीएड कर रहा था. मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम को देखता था एज ए कोच. तो डे बिफोर लास्ट ईयर ड्यूरिंग दैट ईस्ट जोन टूर्नामेंट he took the admission and he continue and then जो सिलेक्शन हुआ उन्होंने आया, मेरे को एक स्पार्क उनसे मिला. द वे he control, the way he through game he leadership quality, body attitude or everything. Then I after match after tournament खत्म होने के बाद मैं उनसे one to one बात किया. I asked him his family background, where he coming from, where he do training. There, what happened, I tried to find out. And then one to one I called him one fine morning and said that आपका पास वो ability है, you can play as a professional player, as a professional team आप खेल सकते हो, you have that quality, you have that potentiality. मेरे को 3 days to almost 1 week उनका जो दोस्त लोग था यूनिवर्सिटी में उन लोग को मैं बोला प्लीज टेल हिम, एक्सप्लेन हिम. देन ही कॉन्टेक्ट विथ मी, कॉल मी अगेन एंड देन द प्रोसेस started. Like I called up about Ranjan Bhattacharya, a former state team Santosh Trophy's runners team coach थे, and he's doing so well in our CFL. one of the अभी जो कोचेस है बंगाल में बेस्ट 3 में उसमें उनका नाम आते. तो आई कॉन्टेक्ट विथ हिम एंड सेड दैट आई हैव दिस प्रोडक्ट टैलेंट बच्चा रॉ, आप थोड़ा देखिए. आई रिक्वेस्ट हिम, आई होप थ्रू माई ऑब्जर्वेशन ये प्लेयर बन सकता है, ये खेल सकता है, एक अच्छा प्लेयर मिलेगा. एंड उन्होंने उनका पास मैं भेजा, मैं खुद गया उनका साथ. I'm so thankful to Ranjanda that he gave him time. He saw, he observed that yes, he have that potentiality quality, and he also have एक होता है ना हंगरनेस, zeal. So उनका भी था, and वो दोनों एक साथ कनेक्ट हो गया. And then what happened? Very next year, he's got a offer from United Sports, Calcutta CFL club. He playing second division I League, and he got selection. I'm very thankful to our chief coach Bengal Santosh Trophy, Sanjay Sen, Mr. Sen, that he select him. He felt that he's have that potentiality. तो ऐसे ही तो प्लेयर तैयारी होता है, सिलेक्शन ऐसे ही प्रोसेस होता है बॉस. और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सपोज एक फुटबॉल गेम हुआ फॉर एग्जांपल, अ गेम हैपेंस, डू यू थिंक a bad refereeing can spoil a game? Refereeing because इंडिया में आफ्टर अ गेम ये बहुत स्क्रूटिनी होता रहता है रेफरिंग को लेके, ठीक है? तो इसमें आपका क्या कहना है? लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर रेफरिंग सिस्टम? इस साल ज़्यादा हो रहा है. अगर मैं पूछूंगा आप कितना साल से आईएसएल देख रहे हो? आईएसएल मे बी लास्ट 4 years. 4 years? Yes. So did you observe one thing this year? Don't you think it's so much of wrong decisions or something is happened refereeing side that they're not given proper or handling properly match. Some decision very harsh. नहीं लग रहा है, करेक्ट.
मेरे को भी लगा. एंड इसकी ये लेके रेफरिंग को लेके ऑडियंस से लेके एवरी क्लब स्पेक्टेटर सपोर्टर से लेके मैनेजमेंट से लेके सब अपील कर रहा है AIFF को, व्हाई डिडंट टू प्रोड्यूस VAR. तो क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मैनेजमेंट का बात है, ये AIFF का बात है, ये FSDL का बात है. AIFF said that they don't have money. How could be? You run such a big league, India #1 league, and refereeing quality very poor. Sometimes it gets smell that intentionally, deliberately doing the approach, the body language. अभी बहुत रूल्स चेंज हो गया गेम का. हम लोग जब खेलते थे forget about our time, but gradually, slowly FIFA, referee, board committee, they research, they're doing every day they are researching. Every day things are doing, getting modified. लेकिन still आप एक ISL स्टैंडर्ड का one of the best standard till now today, उसमें अगर आप प्रॉपरली रेफरिंग नहीं हो रहा है, टीम सफर कर जा रहा है ना. करेक्ट. टीम तो सफर कर जा रहा है. और जो टीम को सफर हो रहा है तो उसको वेरी बैडली सफर हो जा रहा है. दिस पॉइंट देयर एंटायर गेम. देखो 96 का वर्ल्ड कप देखो, माराडोना का जो हैंड ऑफ गॉड जो गोल अगेंस्ट इंग्लैंड, उसको ले गया. अभी एक ब्लैक स्पॉट हो गया वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड फुटबॉल मैप में ब्लैक स्पॉट. इवेंचुअली इफ यू से लाइक दिस. आप माराडोना से मिले हो कभी? बिकॉज ही Yes. केम टू कोलकाता ट्वाइस. I was so lucky. अच्छा. Oh my God. हाउ वाज द फीलिंग लाइक? Oof. Can't explain. I don't have any words to explain. तो व्हाट वाज द इंटरेक्शन लाइक? क्या कैसा था? I'll tell you that, आप देखो फिर मेरा गुज़बम हो रहा है. When I met him first time when he came India, तो उस टाइम सुभाष चक्रवर्ती was our sports minister. Okay. तो सर ने एक एग्जीबिशन मैच ऑर्गेनाइज किया था among all the current players. In front of him will play that time our nationals game, national league will, उस टाइम नेशनल लीग बोलते थे जब ये ISL फॉर्मेट उसका उस टाइम वो था. तो जो भी है तो एक टाइम आया टू interact with him, every player. How is he as a person? Like Stand on the queue, and I'm waiting and getting so excitement to when my chance will come, when I'll get the chance to hug him. And one after another we are, हम लोग आ रहे हैं, कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरा. तो जब आया, सपोज आपका बाद ही मेरा टर्न है. So I'm so excited too. And मैं देखते रह गया. Hardly you are getting, few seconds. You'll hug and go. But मैं ना देख के, then when I touched him, you won't believe how to explain. I don't have any words to explain here. पूरा सर से पैर तक अंदर में गूज़बम्स लाइक एक इलेक्ट्रीफायर जैसा इलेक्ट्रीफाइंग हो रहा है. एंड ही हग्ड हिम. मेरे को दिल नहीं कर रहा है उनको छोड़ने के लिए. ही आस्किंग मी समथिंग, व्हाट्स योर नेम और समथिंग, उनका अपना मदर लैंग्वेज में, अर्जेंटीनियंस में. आई कुड अंडरस्टैंड. बट एक होता है ना, एक फुटबॉल में तो कोई लैंग्वेज नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो इसमें जो आई फील दैट आई गॉट स्मेल. जो उन्होंने मेरे को पूछा व्हाट्स योर नेम और समथिंग काइंड ऑफ, आई सेड वेरी फ्यू सेकंड आई गॉट अ चांस टू मीट हिम फर्स्ट टाइम. देन सेकंड टाइम व्हेन ही केम, आई वाज सो लकी. ही वाज प्लेइंग विथ अस few hours. He was there inside the pitch. So it was magical moment for you. Magical. One of the what to call best ever to play the game. Yeah. वर्ल्ड फुटबॉल में उनको प्रिंस कहते हैं. आप अगर बोलोगे मेसी रोनाल्डो, मैं बोलूँगा माराडोना. अच्छा, हम मेसी रोनाल्डो में आएंगे. I'll ask you this question because this is telling you इन दोनों में
मैराडोना का कंपैरिजन में नहीं आएगा. He is in a different level of ball game. Different level of ball game. Now, if I just ask a very generic question, Messi or Ronaldo, who is your favorite? आप दोनों नहीं बोल सकते, एक को चूज करना पड़ेगा. फिर आप बताना, maybe you like both, because even I like both. I like and I respect both of them, but आप, if it's very unfair to ask this question, I know, but बहुत लोगों का दिन में मन में ये, and I have been told by my team कि ये सवाल पूछना, the East Bengal question which I asked you, and this, Messi या Ronaldo, who would you say? I think दो जगह से मैं बोलूँगा, I can explain you, Messi or Ronaldo. Ronaldo got European Cup, Messi got World Cup. Correct. And Messi very gentleman footballer. एकदम soft types. Cool, calm. And Cristiano Ronaldo is very aggressive. ये भी एक story है behind. If you go through his autobiography or something. Childhood सब कुछ. Yes. इसलिए ऐसे होता है क्योंकि एक बच्चा जब तैयार होता है, he saw his mother many things. तो स्ट्रगल. और मेसी को सोचिए आप, एक अलग से एनवायरनमेंट एम्बियंस में उन्होंने बड़ा हुआ. Correct. And Cristiano Ronaldo, always bang on his childhood career through his family background. Mother, खाना नहीं मिलता था एक होटल में उनको, he used to work as a sweeper, cleaner, like उनका मम्मी भी ऐसे थे. तो दोनों का अपब्रिंगिंग जो ये था, स्टेटस था, डिफरेंट था. दैट्स द रीजन, वो जो एग्रेशन, वो जो एग्रेसिवनेस, वो जो एटीट्यूड जो है, एक रोबोटिक. What I felt in robotic, this words I think is the appropriate word. ये चीज है उसके लिए. रोनाल्डो. क्योंकि एक मैच में 90th मिनट, सपोज 88th मिनट भी हो गया, ओपोनेंट टीम 2-0 लीड कर रहा है, 1 मिनट या 2 मिनट बाकी है गेम का, एंड देन ऑल्सो रोनाल्डो का मेरे को देख के क्या लगता है, इवन दैट मोमेंट ऑल्सो ही बिलीव्स कि हम ये मैच जीत सकते हैं. दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ऑफ कोर्स ये हुआ बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग बचपन से. करेक्ट. ये ऐसे होता है. देखो हम लोग भी, I'm not compared with him, but that nature of character. Every player have his own identity and then character. So my childhood was the same. कुछ चीज बचपन में मेरे को नहीं मिला, वो मिलने का एक डिजायर, एक सपना, एक ड्रीम्स, एक हंगरनेस, जहां पे मैं पला हुआ हूँ. बाजू में आपका एक अंडर प्रिविलेज और अंडर पॉवर्टी फैमिलीज, सोसाइटी वाज देयर. वहां से बहुत स्लैंग, दैट लाइफस्टाइल. तो मैं क्या था? आई एम नॉट सेइंग दैट माय, as I told you, that my family background, we are coming from very middle class and humble background. उस टाइम मेरा पिताजी को उतना भी ये नहीं था, मिनिमम तो नहीं, मिनिमम जो होता है एक बच्चे को परवरिश करने के लिए, ऐसे ही. लेकिन वो भी, उसमें भी क्राइसिस था क्योंकि मेरा सिस्टर को देखना पड़ता थे. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं और मेरा भैया को कोई डिमांड ही नहीं था. अच्छा. बिलीव मी, 92 में मेरे को TFA में, टर्फ एकेडमी में चांस मिला. एंड 92 तक मैं हाफ शॉर्ट्स में घूमते थे, बट उस टाइम मैं बहुत टॉल हो गया था. आई स्टिल रिमेम्बर, लोकल ट्रेन से हम चुचुरा से मैं जाते थे, कलकत्ता आते थे, तो मम्मी मेरे को लेडीज़ कंपार्टमेंट में लेके बैठते थे, ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेते थे, मेरा रिस्ट. ओके. एंड कंपार्टमेंट में जो आंटी लोग और सीनियर
लेडीज कंपार्टमेंट में जो आंटी लोग रहते थे, दे स्टार्टेड शाउटिंग, क्यों आप लेके उनको बैठे, बड़ा हो गया, दिस दैट मेनी. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, बिकॉज आफ्टर TFA में चांस मिलने के बाद my dada, my elder brother, he promised me that I'll get full pant, अच्छा. full track. हाँ. You understand? So I was so happy. I got a one, what to call that suit, same color of, upper and lower, not track suit, but it's a pant shirt. वो एक अलग हैप्पीनेस था. बहुत खुश था. I can't explain it. I can't, you can't imagine कितना मैं खुश था. फुल पैंट मिला मेरे को. So Anita, before we wrap it up today, I'll ask you one last question. तो अगर आपको कोई मैसेज देना होगा एज a person who is an aspiring footballer, जिसको फुटबॉलर बनना है, maybe who is 10 or 12 years old, तो उसको आप क्या बोलना चाहोगे? What message would you like to give to that kid who wants to play for India, who wants to become the next Sunil Chhetri, or who wants to become, जो सपना देखना चाहता है कि मैं भी एक दिन इस बंगाल में खेल रहा हूँ, मैं भी एक दिन मोहन बागान में खेल रहा हूँ, मैं भी एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, what message would you give to that person? First of all, discipline must. Discipline होना ही मांगता है. Second thing that you have to immediate change your habit, your phone, mobile, gadget. Third one is whatever you have problem, you have your family problem, keep doing training. If you have your physically you are not well, keep doing training. If you can't do training, keep doing training. If you feel cry, keep doing training. If something goes wrong or something, either your family or you have some problem or anything, keep doing training. Training. Only through training you can develop your skills, and with discipline. And talk yourself. अच्छा खाना, अच्छा सोचना, and talk yourself. आप क्या बनना चाहते हो? और सपने बड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Obviously, the dreams you have to, and उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, रियलिटी में आना है. कुछ भी हो जाए, छोटा नहीं सोचना है, बड़ा ही सोचना है हमेशा. you have to think healthy, you have to eat healthy, you have to, always be healthy. ट्रेनिंग आपको मिस करना नहीं है. ट्रेनिंग आपका मम्मी, डैडी, whoever, sick, or that, festival, this, that, you have to be, Saptashi, boss, you have to, otherwise you cannot. If you want to reach in that level, if you want to go that level, the way you said, Chhetri. You have played against Sunil Chhetri or with him? Yeah, he's my junior. Okay. उन्होंने जब मोहन में आया था 2003 में, 2003 में, तब हम लोग, as you know, we started from 95-96, almost 4-5 years हम लोग खेल लिया. लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम. All of us are. Big fan of him. Definitely मैं बाइचुंग से खेला. We playing, भूटिया, most of the, club side देश के लिए. फिर भी वो पहले स्टार्ट किया. He started, his career early. But, and through him only, world get the recognition that India playing football. Correct. Undoubtedly, we have to appreciate, to accept this. What truth. makes him special? वो लेकिन दूसरों से सुनील, special. लेकिन सुनील जो है, the way he transform, ये जो ICL खेलना और उसका जो क्लब चेंज करना, बैंगलोर FC में जाना, उसका पहले जो जर्नी था, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, JCT और समवेयर अदर क्लब, ये जो जर्नी था, ऑलमोस्ट 10 years जर्नी था, 10-15, ऑलमोस्ट 12 years. तो ये जो जर्नी था, उसमें उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन
and today's Sunil, I really admire him. Of course, Absolutely. he make a example, make a benchmark. वो height लेके you have to appreciate इंटरनेशनल लेवल पे वो हाइट लेके उसको बहुत कुछ करना पड़ा. Sacrifice, struggling. You have to read his game. 6 feet above डिफेंडर का साथ एक छोटा वो तो दिखा है ना. हाइट डजंट मैटर. Yeah. Obviously मैटर इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ. People like Messi, Sunil Chhetri, they have proved that Yeah. height Iniesta. does not matter. Iniesta, Xavi, correct. Absolutely. lot of Lot of international examples. are there. So Sunil, the way, so I always, मैं young generation को वही बोलूँगा, this few things have to be maintained, Correct. have to be, otherwise नहीं होगा. और अभी जो सिचुएशन है, प्रेशर हम लोग का बेस भी था, अभी बढ़ गया. लेकिन हाउ यू प्रेशर को लेना है. Pressure handling ability. Yes, that you have to. And आपका पास तो आ गया बहुत कुछ. Lot of sports science, अभी सब sports कुछ physio, AI आ गया. everything in your hand, in front of you. Digital system or आप लोगों के टाइम में उतना कुछ नहीं था. nothing. देखो, जो भी स्पोर्ट्स होता है 3 मेथड में होता है. द ट्रेनिंग प्रोसेस, प्रैक्टिकल नंबर 1, नंबर 2 थ्योरिटिकल, नंबर 3 इज विजुअल. Okay. राइट. सो हम लोग का टाइम उसका पहले कहाँ था विजुअल. थ्योरिटिकल भी उतना स्ट्रांग नहीं था. आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम. द few coaches of India, one of legend coaches, they used to only use their finger during the coaching time. We used to, हम लोग देखते थे, उनका फिंगर देख के हम लोग प्रैक्टिस करते थे. The legend, a player becoming coming as a coach. So अभी तो आ गया. Every single practice session, every single momentum, your body, बॉल आप जो फ्री किक मार रहे हो, ये भी उसका एक है. वहां पे भी एक बैठा हुआ है आदमी. Everything is science and data now. Yeah. एकदम science and data बन गया सब कुछ अभी. सो इट्स वेरी इजी टू. लेकिन जो करना चाहता है वो कर लेगा. नहीं, देखो अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग का जो ग्रास रूट है ना. कुछ दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया था, आपका कोचेस FFCI में. They are given a recognition, felicitation those coaches जो लोग विलेज में काम कर रहे हैं. What resources they have. अभी वेस्ट बंगाल में अभी फुटबॉल, जो फुटबॉलर है वो चेंज हो गया. अभी एक अलग से कम्युनिटी आ गया, आदिवासी कम्युनिटी आ गया. You can see very rare Mukherjee, Ghosh, Roy, Chaudhary, Roy or Banerjee or Chatterjee. You haven't seen. Very rare, 1 or 2. बीच में बहुत बात चल रहा था ना. ISL में there's no Bengali players, only couple of few. एक शोभिक चक्रवर्ती इस बंगाल में है. आपका केरला ब्लास्टर में अभी प्रीतम खेल रहा है. मोहन में सुभाषिष बोस. केरला ब्लास्टर में शायद ट्रावल्सर छोड़ के चेन्नई में चला गया प्रवीत दास. जमशेदपुर FC में सौरभ खेल रहा है. कुछ वगैरह बहुत कम. इंडियन टीम में तो प्लेयर ही नहीं है, कोई बंगाली नहीं है. नेशनल टीम में कोई बंगालीज नहीं है. सो अनिता, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपसे मिला. इट हैज बीन अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर दैट यू केम इन दिस शो. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? Feelings is something different, which is I cannot right now, I cannot explain you. क्योंकि मैं अभी भी एक जोन में ही है, जोन में हूँ. वो बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप या फोन में बता. डेफिनेटली. बट ये जो इंट्रोडक्शन हुआ,
and जो quality time we spent. आपको मजा आया? You liked it? Yeah, I'm telling you, I'm so honored and Yes. privileged Thanks. that you It thought really that means a lot. thought about me, think about me, that I'm the appropriate person. Absolutely, absolutely. So मैं भी चाहता हूँ, a lot of things it's happened in Indian football. जो एक nepotism चल रहा है, एक favoritism चल रहा है. Right person not getting chance in right place doesn't matter. You have देखो एक यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास और उनका साथ आप अगर आप इसको डाल दो दैट जैबलर नीरज चोपड़ा तो आप किसको ज़्यादा पसंद आएगा पीपल नॉर्मली Of course, Neeraj Chopra. नीरज चोपड़ा वाई Because he has done that thing in the international level और उनको लोग जानते हैं basically. दैट साइमल्टेनियसली तो ये भी जो इज कमिंग ही इज आल्सो कमिंग फ्रॉम यूएस सम यूनिवर्सिटी पास आउट गेटिंग द डिग्रीज ऑल एवरीथिंग बट व्हाई एक perceptual value. सोचना है Correct. सो ये चीज जितना जल्दी हम लोग बदलेगा उतना ही अच्छा है. इट्स गुड फॉर आवर कमिंग जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन Correct. so that's the thing I always given a message to my next generation that first and foremost and they're very smart nowadays. Everything you're getting in front of your eyes or your hands. Lekin the basic you cannot change. Basic change नहीं कर सकते बिल्कुल. Do you understand, my dear brother? एकदम एकदम. जैसे 100%. सुबह होता है, सुबह का बाद दोपहर होता है, दोपहर के बाद नून होता है, नून के बाद ही आता है इवनिंग. उसको चेंज नहीं कर सकते You आप. cannot change. The cycle of basic, a basic of cycle, you cannot change. That remains constant. Thank you. Anidda, thank you. It's a pleasure. Me too. Thank you. Okay. Thank you for tuning into this insightful chat with Anit Ghosh. We hope you enjoyed the discussion on Indian football and much more. So don't forget to like, share and subscribe and also press the bell icon. Until then, keep thinking deep.